दोस्तों। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 बी। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 243 बी एंड 243 सी। तो ठीक है दोस्तों, चलें स्टार्ट करें। ओके। 243 बी संविधान का अनुच्छेद 243 बी क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स, यानी पंचायतों का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स यानी जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके गठन की बात की जा रही है। आर्टिकल 243 आर्टिकल बी के तहत। तो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स नंबर 1, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट यानी प्रत्येक राज्य में कॉन्स्टिट्यूटेड यानी प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। There shall be constituted in every state panchayats at the village। जो ग्राम सभा लेवल पर जो पंचायत है उसका प्रत्येक राज्य में गठन किया जाएगा। In a state having a population not exceeding 20 lakhs। फिर से पढ़ देती हूँ। 243 आर्टिकल बी सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत्स, पंचायतों का गठन। नंबर 1, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट पंचायत्स एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। Intermediate and district levels in accordance with the provisions of this part. Number 2, notwithstanding anything in clause first, panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding 20 lakhs। जो 20 लाख से कम नहीं होनी चाहिए उस जगह की जनसंख्या। तो 243 सी आर्टिकल 243 आर्टिकल सेज कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स यानी पंचायतों की संरचना। कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स, पंचायतों की संरचना के बारे में बताया जा रहा है। Number 1, subject to the provisions of this part। Number 1, subject to the provisions of this part, the legislature of a state may by law make provisions with respect to the composition of panchayats, provided that the ratio between the population of the territorial area of a panchayat at any level and the number of the seats in such panchayat to be filled by
election shall so far as practicable, for as practicable be the same throughout the state. दोबारा पढ़ देती हूँ उसको. Provided that the ratio between the population of the territorial area of a panchayat at any level and the number of seats in such panchayat to be filled by election shall so far as practicable be the same throughout the state. Number 2, all the seats in a panchayat shall be filled by persons chosen by direct election from territorial constituencies in the panchayat area, and for this purpose each panchayat area shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of the seats allotted to it shall so far as practicable be the same throughout the panchayat area. Number 3, the legislature of a state may by law provided. Number 3, the legislature of a state may by law provide by the representation A of the chairperson of the panchayats at the village level, in the panchayats at the intermediate level, or in the case of a state not having panchayats at the intermediate level, in the panchayats at the district level. Number B, of the chairpersons of the panchayats at the intermediate level, in the panchayats at the district level. C. Number C, of the members of the House of the People. Number C, of the members of the House of the People and the members of the Legislative Assembly of the state representing constituencies which comprise wholly or partially a panchayat area at a level other than the village level in such panchayat. Number D, of the members of the Council of States and the members of the Legislative Council of the state, where they are the registered as electorals within 1, a panchayat area at the intermediate level, in panchayat at the intermediate level. Number 2, a panchayat area at district level, in panchayat at the district level. Number 4, the chairperson of a panchayat at the other member of a panchayat, whether or not chosen by the direct election from the territorial constituencies in the panchayat area, shall have the right to vote in the meetings of the panchayats. Number 5, the chairperson of a panchayat at the village level shall be elected in such manner as the legislature of a state may by law provide and be a panchayat at the intermediate level or district level shall be elected by the from amongst the elected members thereof. अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ. अनुच्छेद 243 खा बताता है पंचायतों के गठन के बारे में. अनुच्छेद 243 खा पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है. नंबर 1, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा. नंबर 2, खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस
राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अनुच्छेद 243 गा पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है। नंबर 1, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के जो पारदेशिक क्षेत्र की जनसंख्या है उसका ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। नंबर 2, किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में पारदेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उसके द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को पारदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थान की संख्या से अनुपात सम्मत पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। नंबर 3, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नंबर का ग्राम स्तर पर पंचायतों के सदस्यों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं जिला स्तर पर पंचायतों में। नंबर का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में। नंबर का लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में। नंबर का राज्य सभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे नंबर 1, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में। नंबर 2, जिला स्तर पर किसी पंचायत के क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। नंबर 4, किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को चाहे वे पंचायत क्षेत्र में पारदेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। नंबर 5 का ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाए